पहला परसों जमीर अहमद साहब एक मीटिंग में केएमडीसी भवन है तनवीर सेठ साहब का पीरियड में वो शुरू हुआ था शेषाद्रीपुरम में। बेहतरीन एक बड़ा एक हमारा इदारा है, वो इदारा का नाम का बारे में डिस्कशन हुआ। तब जमीर साहब बोले वैसा रहे तो मैं अजीज सेठ साहब का नाम लेंगे। जयंती कभी हमारी मांग नहीं रही, टीपू जयंती हमारी मांग नहीं रही, ना हमारी मांग रहेगी। टीपू के चाहने वाले टीपू के नाम से है ना वो अपना है ना जो भी प्रोग्राम है वो मना रहे, किसी की मदद की जरूरत नहीं। मुस्लिम लीडर्स का नाम हर एक जगह में भी ये चेंज हो रहे हैं। ये देखो पहला परसों जमीर अहमद साहब एक मीटिंग में केएमडीसी भवन है तनवीर सेठ साहब का पीरियड में वो शुरू हुआ था शेषाद्रीपुरम में। बेहतरीन एक बड़ा एक हमारा इदारा है, वो इदारा का नाम का बारे में डिस्कशन हुआ। और अबुल कलाम आजाद करके बोले, मैं बोला अबुल कलाम आजाद हर एक जगह में भी है, ये जरा हमारा कर्नाटक का गुजरा हुआ लीडर्स है उनका नाम लेना है। मैं कौन है करके जमीर साहब पूछे, तब मैं बोला जाफर शरीफ साहब है, नीर नजीर साहब है। तब जमीर साहब बोले वैसा रहे तो मैं अजीज सेठ साहब का नाम लेंगे, उसमें रखेंगे करके उन्होंने खुद बोले, क्योंकि उन्होंने लायक भी आहक भी है क्वालिफाइड भी है। इसलिए मैं हुकूमत से ये मुतालबा करूंगा, कर्नाटक राज्य ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಉಲಮಾಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯು ಎಲ್ಲರ ಮುತಾಲಬಾ ಇದಿತ್ತು ಏನೋ, ಎಲ್ಲರ ಏನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಮುತಾಲಬಾ ವಿನಂತಿ ಕಳಕಳಿ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿತ್ತು। 4 ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೀನಿಯರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರಿಸ್ ಸಾಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ। ಎಲ್ಲ MLA 9 MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ MLCಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 4 ಮಂದಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಬ್ದ ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ। ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ। ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾರಿಸ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಇನ್ನಿತರ ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಹೊಸಬರು ಬಿಡಿ ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೊಸಬರು ಇರೋದು, 7 ಮಂದಿನೂ ಹಳಬರೇ ಇರೋದು। 6 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, 6 ಬಾರಿ ಹಾರಿಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿದೆ। ಆದಷ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು। 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಇದು। ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ। ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖತಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತಂದು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ್ನು ತಂದು ಅಥವಾ ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತಂದು ಹೇಗೆ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್, ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್, CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನು ಖತಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖತಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹುಂಬ ಕನಸು ಮಾತ್ರ। ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ। सर बीइंग चेयरमैन आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की तैयारियों को आपने देखा, आपका क्या मैसेज है सर? बहुत खुशी हुआ देखे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बहुत अच्छा तरह से बहुत अच्छा इंतजाम के साथ हो रहे। इसके मैं दिल का गहराई से हमारा कायद अली जनाब तनवीर सेठ साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा इंतजाम है। मैं मैसूर से आया, मैसूर से आने के टाइम में रास्ता में सब बहुत भीड़ थे, बहुत लोग थे, फिर भी बहुत इंतजाम भी थे, इसलिए और इधर स्टेज का प्रोग्राम और आने वाले मेहमानों को कैसा इधर इस्तिकबाल करना है, ये पूरा एवरीथिंग पूरा इंतजाम
बिल्कुल शानदार थे, खूब थे। इसलिए मैं अली जनाब तनवीर शेख साहब और उनका पूरे टीम को मैं शुक्र गुजारूंगा। सर वक्त में स्टेट विजिट जमीर अहमद खान तशरीफ में लाए, उनका क्या है ये सब? कल रात जमीर साहब फोन कर रहे थे, मुझे बोले आप जाना है, प्रोग्राम को जाना है, तनवीर शेख साहब है, और जितना उधर क्या भी रहे तो आप तनवीर शेख साहब को मिल के बात करके और उसको मेरा तरफ से क्या भी सहूलत होना तो मेरा खिदमत, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करो। और मैं मुंबई जाना है और उनका रिश्तेदार का साथ है, इसलिए मैं ये साल आने नहीं हो रहे। और तनवीर शेख साहब को भी सुनाना और लोगों को भी मेरा एक एक संदेश भी सुनाने को उन्होंने बताए थे। उन्हें बहुत खुशी है और 25 लाख रुपए भी तनवीर शेख साहब बोले और इमीडिएट उन्होंने ग्रांट्स भी दिलाए। जी सर। सर यहाँ पे तनवीर शेख साहब की कई डिमांड्स है, उसमें एक रिसर्च सेंटर के सामने जमीन है सर, उसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या ये करेंगे? देखो, गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करने से आहक के तनवीर शेख साहब अभी तो सीनियर लीडर है, मिनिस्टर नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन तो कांग्रेस का सीनियर लीडर है और बहुत तजुर्बा का एक लीडर है और एक दानिश्वर, वो ऐसा एक सियासी लीडर नहीं है, पूरे कर्नाटक को मालूम है, मुझे तो अच्छी तरह से मालूम है। 2011 से मैं वक्फ बोर्ड में हूँ, वक्फ का जानकारी का बारे में और वक्फ का रूल्स और वक्फ का एक्ट का बारे में मुझे लग रहा है शायद तनवीर शेख साहब से बेहतर कोई भी हमारा रियासत में नहीं जानते करके मेरा ये है, क्योंकि उतना अच्छा जानकारी है उनको, हर एक इस्लामी शरीयत का ये भी मालूम है और जनरल एजुकेशन दो भी है, इसलिए गवर्नमेंट का साथ पेश करने का लायक भी है और इंशाअल्लाह वो करेंगे करके मेरा भी ये भरोसा है। पिछली हुकूमत में भी आप चेयरमैन रहे, अभी भी और दोबारा चेयरमैन बने हैं, ऐसा कुछ है जो आप करने वाले हैं, ऐसा कुछ काम बाकी है जो आप करने वाले हैं सर? नहीं है तो देखो, हमारा तनवीर शेख साहब ऐसा हम पूरे मेंबर्स मिलके एक मौका दिए, अल्लाह जब तक चेयरमैन का उहदा में बैठाते इंशाल्लाह बैठना है, और चेयरमैन से उधर क्या भी नहीं होता, तनवीर शेख साहब को पूछो, उधर कलेक्टिव डिसीजन पूरे मेंबर्स मिलके एक डिसीजन लेना है। एक कमेटी, छोटा कमेटी बनाना तो चेयरमैन खुद नहीं कर सकते, वक्फ बोर्ड का एक्ट वैसा है, रूल्स वैसा है, उधर मेजोरिटी जो डिसाइड करते हैं वही होता है। छोटा एक फैसला भी सिर्फ और चेयरमैन को नहीं ले सकते, पूरे कलेक्टिव डिसीजन रहते, पूरे मेंबर्स मिलके एक चेयरमैन रहते, उतना ही है। चेयरपर्सन रहना है ना, हर एक इसको भी एक चेयरपर्सन रहना वैसा ही है, वो दूसरा पूरा एक मेंबर्स पूरे मिलके इत्तेफाक से करते हैं। सर जिस तरह आप अपने बयान में टीपू यूनिवर्सिटी को लेकर जो है बात कही है, सर ये सबकी मांग है, सारे मुसलमानों की मांग है, पूरे कर्नाटक के अंदर एक टीपू यूनिवर्सिटी जो है ये कब जाकर जो है पूरी? मैं पूरे मुस्लिम लीडर्स को बता रहा हूँ, मैं मुतालबा भी कर रहा हूँ। अभी कुछ लीडर्स क्या है बोले तो दूसरा चीजों में बात कर रहे हैं, हमारा मुसलमानों 88% तनवीर शेख साहब को इधर खड़ा के नहीं बात करना है, फिर भी बात कर रहा हूँ। 88% मुस्लिम वोट मिले, फिर भी हमारा मुसलमानों को 2 मिनिस्टर लिए, इसके बारे में बात करना जरूरी है। 4 मिनिस्टर मिलना था हमना, उधर भी धोखा हुआ। ये मेरा बात है, तनवीर शेख साहब का नहीं है, मेरा शाफी सैदी का ये स्टेटमेंट है। ये 4 मिनिस्टर मिलना था, वो नहीं मिले, और उसके साथ साथ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का नाम लेने भी डर रहे। क्यों डरना हमें? कौन भी मुखालफत करते, कौन भी इल्जामात करते करके बोल के टीपू सुल्तान को भूल सकते क्या? अगर टीपू सुल्तान का हिस्ट्री नहीं तो कर्नाटक का हिस्ट्री कैसा मुकम्मल हो जाता? इसलिए टीपू सुल्तान का नाम से यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्यों नहीं बन सकते हमें? इसलिए आज सिद्धरामैया गवर्नमेंट टीपू सुल्तान का यूनिवर्सिटी बनाना है, टीपू सुल्तान का नाम ही रखना है। इंशाल्लाह जगह है ना, इंशाल्लाह तनवीर शेख साहब मिलकर इंशाल्लाह देंगे। पिछले कई सालों से आपने हुकूमतशाही की तरक्की में बहुत बड़ा काम किया है, जैसे कि शाफी साहब ने अपनी तकरीर के दौरान भी कहा था। सर ऐसा आपने कई डिमांड्स भी रखे हैं, आपका क्या पैगाम है सर? ये सबसे पहले मैं ये बात को मैं साफ तौर से आवाम के सामने भी रखा हूँ कि रियासत कर्नाटक में लगभग 40 पर 8,000 वफ़ की इमलाक है, जिसमें ना लगभग 36,000 से ज़्यादा है ना वफ़ के इदारे हैं। तो इसमें 4 ऐसे इदारे ऐसे हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जेर निगरानी में आ गए हैं। तो जब मैं
वजीर अक़लियती बहबूदी और औक़ाफ़ रहा तो 35 करोड़ रुपए जो वफ़ इदारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए निगरानी वहाँ पे तरक्की के लिए मैं रखे थे। तो इस तरीके के मंसूबों को सामने रखना है और साथ ही साथ बीजापुर में लगभग 27 मसाजिद और 50 से ज़्यादा छोटी छोटी जो जगह हैं ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है। मैसूर डिवीजन में श्रीरंगपटना के ना तुम्हारे ना गुंबद शाही और मस्जिद आला है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में है, यहाँ पे एक बैतुल खुला बनाना बोले तो भी है ना दिल्ली से परमिशन लेना है। तो इस वजह से मैं बोर्ड में भी कई मरतबा इस बात को रखा था। तो आज हमारी खुद की हुकूमत होने की वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसरों को बुलाकर इसका एक बाकायदा प्रोग्राम बनाना ये मेरी एक कोशिश है। दूसरा, यहाँ जैसे मैंने मेरे तकरीर में भी कहा कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को है ना मिटाने की पूरी कोशिश की गई। बच्चों के पढ़ने की किताबों से भी है ना उस चैप्टर को निकालने का कोशिश की। आज फिर एक बार सिद्धरामैया की हुकूमत टेक्स्ट बुक्स को है ना रिवाइज करने का काम कर रही है। तो जैसे जनाब शाफी सादी ने कहा कि मैसूर की तारीख हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम के बगैर अधूरी है। तो इस चीज़ को फिर एक बार लाना ये मेरा मुताबला है। तीसरा, हमारे लिए जहाँ कहीं भी अवकाफी जगह है वहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस शुरू करने के लिए लीज रूल्स के तहत हमारे पास जो भी है इसको सामने रखकर है ना तरक्की के राह में हम जाने की कोशिश करना है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं बोर्ड में भी रखूंगा, हुकूमत के सामने भी इसको मैं बाकायदा रखूंगा। और रही बात, जैसे हमने कहा कि टीपू जयंती कभी हमारी मांग नहीं रही, टीपू जयंती हमारी मांग नहीं रही, ना हमारी मांग रहेगी। टीपू के चाहने वाले टीपू के नाम से है ना वो अपना है ना जो भी प्रोग्राम है वो मना रहे, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें कौम के लिए तालीम की सख्त जरूरत है। तालीमी एतबार से जिन चीज़ों को हम मना पूरा करना है, जैसे स्कॉलरशिप्स हैं, दूसरे हैं, और यहाँ तक के ना जब मैं वजीर रहा औकाफी इमलाक से 30% आवाम की है ना जो मिल्लत के बच्चों की तालीम और है ना दवाई के लिए खर्च करने के लिए हमने है ना पूरे इदारों को है ना सर्कुलर्स भेजे थे। वो आज तक है ना वो कहीं है ना ज़र अमल में नहीं आया। तो इस वजह से सख्ती से साथ जहाँ जहाँ जो काम करना है इन कामों को करने के लिए बोर्ड अपने किरदार को है ना ज़रा और बेहतर तरीके से काम करने के लिए आगे आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वजीर और हमारी जो टीम वक्फ बोर्ड में है, हम तब तमाम मिलकर इसे एक सही रुख के साथ है ना काम करने की कोशिश करेंगे। सर, बीजेपी जमीर अहमद खान अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ ये लोकल एमएलए नजर नहीं आ रहे सर, ये क्या बात है, वजह समझ में नहीं आ रही। देखिए, दावत देना हमारा काम था, जिस किसी को भी हिदायत हुई वो हमारे साथ आए हैं, ये अल्लाह का शुक्र।